Very good evening, all the participants. So I think we have to start from section number 25. है ना? 25. अब section 24 we have already covered. So let us see the duties. Section 25. So what section 25 says? Section 25 talks of duties of the RP. And we have to read these duties in conjunction with the duties of the IRP, which we have already studied. And here, regulation number 36A and regulation number 27 to 30, they are also important. So we have to read these regulations also. So what it says? It says it shall be the duty of the RP to preserve and protect the assets of the corporate debtor, including the continued business operations of the corporate debtor. Now, Ajay Jaiswalji, how it is different from the duties of the IRP? If we read the duties of the IRP, they are given in section 20. So section 20 also says, shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage the operations of the corporate debtor as a going concern. Section 20, subsection 1. But here it says, it shall be the duty of the RP to preserve and protect the assets of the corporate debtor, including the continued business operations of the corporate debtor. For the purpose of subsection 1, the resolution professional shall undertake the following actions. Now, because he is the person responsible for everything, board has been suspended, now he is all in all. So he shall take immediate custody and control of all the assets of the corporate debtor, including the business records of the corporate debtor. Represent and act on behalf of the corporate debtor with third parties. Suppose some arbitration case is going on, or some other issues are there. Some say refunds are due with income tax department, GST department, and he has to follow up. So who will go? This RP will go. Rights for the benefit of the corporate debtor and judicial, quasi-judicial or arbitration proceedings. Raise interim finances subject to the approval of the committee of creditors under section 28. Section 28 talks of certain actions which can be done only with the approval of the COC, and that too with 66% majority. So this section says that RP shall be able to raise the interim finance subject to the approval of the COC. Because COC normally sets a limit that, okay, up to this much amount, you can raise interim finance on your own, and beyond this amount, you have to take our approval. Appoint accountants, legal or other professionals in the manner as specified by the board. Maintain an updated list of claims. Convene and attend all meetings of the committee of creditors. Prepare the information memorandum in accordance with section 29. So this information memorandum is a document which is prepared basically for the resolution applicants, so that he can put forth a resolution plan based on the estimated assets and liabilities which are present with the CD. Invite prospective applicants, resolution applicants who fulfill such criteria as may be laid down by him. So who is laying down the criteria? The criteria is laid down by the RP with the approval of COC, having regard to the complexity and scale of operations of the business of the corporate debtor, and such other conditions as may be specified by the board to submit a resolution plan or plans. I have posted some MCQ also, है ना? Around Yes, sir. 15 MCQ I have posted in the group, and they are based on understanding of these sections only. So if they ask you, who will lay down the criteria is to be laid down by the RP, and Yes, sir. COC will approve that criteria. Yes, sir. Present all resolution plans at the meeting of the committee of creditors. File application for avoidance of transactions in accordance with chapter 3. Avoidance transactions, PUFE transactions basically, preferential, undervalued, extortionate and fraudulent. PUFA, sir. And such other actions as may be specified by the board. So he can do all these things. Now 25A talks of rights and duties of the authorized representative of financial creditors.
Regarding authorized this representative of rights and duties of the authorized representative, there are two, three things. Number one, authorized representative, as we know, is the person who is representing a class of creditors. Now, suppose there is a class of creditors and the financial creditors which are belonging to this class, they have not given him any direction. ठीक है, मान लीजिए कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं, तो उस केस में हाउ ही विल वोट, whether he will vote or whether he will abstain from voting or what he will do. I No, think he has to take permission, sir. He has to discuss with them. Right. So it says, provided, so we can see the second proviso to 25A3, provided further that if any financial creditor does not give prior instructions through physical or electronic means, the authorized representative shall abstain from voting on behalf of such creditor. ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, तो he will abstain from voting on behalf of such creditor. Suppose an authorized representative is representing several financial creditors, he can represent. Then he shall cast his vote in respect of each financial creditor in accordance with instructions received from each financial creditor to the extent of his voting share. Suppose there are 10 financial creditors in that class. 5 ask him to vote in a particular fashion. 5 others ask him to vote in another way. So he will accordingly carry out their instructions. Okay? It shall be the duty of the authorized representative to circulate the agenda and minutes of the meeting of the committee of creditors to the financial creditor he represents. Basically, he is a postman. He is acting as a postman. He is acting as a link between the RP and the class of creditors. The authorized representative under subsection 6 or subsection 6A of section 21 or subsection 5 of section 24 shall have the right to participate and vote in meetings of the committee of creditors on behalf of the financial creditor he represents in accordance with the prior voting instructions of such creditors obtained through physical or electronic. So he is basically acting, carrying out their instructions. Okay. Now 3A is very important. What 3A says? Because in 3, what we have read is that he has to carry out their instructions. But 3A says, notwithstanding anything to the contrary contained in subsection 3, the authorized representative under subsection 6A of section 21 shall cast his vote on behalf of all the financial creditors he represents in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditor he represents who have cast their vote. ये बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए, इसको हम समझ लेते हैं एक तरीके से. इसका मतलब क्या है? ये जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, he has come to the meeting of the COC. ठीक है, whether those all the persons which are included in that class of creditor, whether they are also entitled to attend the meeting, वो भी आएंगे या सिर्फ यही आएगा? Sir, come again, Sir, because the authorized representative is already representing, Yes. so they are yeah. not. Yes, sir. Suppose there are 50 financial creditors in that class. And now he is representing all those 50. So only he is authorized to attend the meeting. Right. Now the point is, these 50 financial creditors may have different opinion on their own. Whether they can have different opinions or they have to move in one direction only. They can have different opinions. Yes, very correct. And all of them may not vote. ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं वो वोट करते ही नहीं है. भाई आपने वोटिंग इंस्ट्रक्शंस भी ओपन रख ली है ना, वोटिंग विंडो भी ओपन रख ली, तब भी नहीं वोट करेंगे. जबरदस्ती तो वोट करा नहीं सकते ना. तो अब इसमें बात ये आ रही है कि जो क्लास ऑफ, जैसे मान लीजिए 5000 भी हो सकते हैं. सपोज इट इज अ केस ऑफ ए CIRP वेयर देयर आर 5000 होम बायर्स. हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. है ना. तो ये जो 5000 होम बायर्स है, इसके बेसिस पर इसी को वोट करना. अब वो कोई किसी डायरेक्शन में वोट कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में वोट कर रहा है. सपोज आउट ऑफ 5000 ओनली 3000 हैव वोटेड. ठीक है, बाकी 2000 है एब्सटेन्ड. अब इसको क्या देखना पड़ेगा
इसको ये देखना पड़ेगा कि मोर देन 50% का क्या डिसीजन है Yes, आउट sir. ऑफ 3000। ठीक है, जो मोर देन 50% का ओपिनियन है, मतलब मोर देन 1500 का ओपिनियन है, वही इसका भी ओपिनियन रहेगा। समझ रहे आप? देखिए ऐसा होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस विच आर टेकन इन सीओसी मीटिंग्स। ठीक है, कुछ तो डिस्कशन के लिए एजेंडा रहता है, एजेंडा फॉर डिस्कशन, और कुछ रहता है एजेंडा फॉर वोटिंग। ठीक है, नाउ ही हैज टू वोट। सपोज दिस authorized representative is representing a class of creditors। ठीक है, they are having a certain number, for example say 5000। ठीक है, out of 5000 all may not vote। suppose 3000 have voted and 2000 have voted for the resolution and 1000 have voted against the resolution। हो सकता है ऐसा, है ना? हो सकता Yes, sir. तो अब क्या करें, इसका डिसीजन क्या होगा? क्योंकि मोर देन 50% ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोट किया है, तो जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि 5000 के 5000 ने फेवर में वोट किया है। मतलब समझ गए? राइट 5000 वोटर्स हैं इन ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, Right, sir. नंबर है, नंबर मतलब वोट शेयर समझो आप। Right. ठीक, उनका जो भी वोट शेयर है, वोट शेयर के हिसाब से। But only 3000 attended. हाँ, ओनली 3000 वोटेड। Right. Voted. 3000 ने जो वोट किया उसमें भी दे वोटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। किसी ने Right, sir. फेवर में वोट किया, किसी ने अगेंस्ट में वोट किया, दे कैन वोट, है ना? इंडिविजुअल वोटिंग होती है तो। बट ये देखना पड़ेगा कि मोर देन 50% का डिसीजन क्या है उसमें। हु हैव कास्ट देयर, जो मोर देन 50% का डिसीजन है वही ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का तो decision। 2500 से ज्यादा जिसका जो रहेगा 2500 से वोट 2500 ढाई वोटर हजार नहीं, नहीं नहीं नहीं, 2500 नहीं, 5000 टोटल थे, 5000 में से 3000 ने वोट किया। यही तो इंपॉर्टेंट है, हु हैव कास्ट देयर वोट। मोर देन 50 किसका लेना है? 5000 का नहीं लेना। देयर वोट अगर ये ना No, no, लिखा voting. होता हु हैव The कास्ट voting, देयर वोट, voting should be more than 50%, sir. है? Not those present, but the voting must be more than 50% of those present and voting. हु हैव कास्ट देयर वोट एक्चुअली यस हाँ, एक्चुअली क्या है, वोट शेयर के हिसाब से है ना वो तो, है ना? तो ये present and voting है ना सर, ये 50 more than 51%. मोर देन 50 लिखा है, मोर देन Yes, 51 नहीं, sir. मोर More देन than 50% is present and voting. यस, मोर देन 50 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वोट शेयर इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, sir. ये क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपके साथ ना एक शेयर करता हूं, वोटिंग का होना चाहिए मेरे पास। चलो इसमें नहीं है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Sir, if the total number is 5000 and there are 3000 members present, which is Yes. more than 50%. यस, Again, from that 3000, they must vote. The 50%, more than 50% must be present, and more than 50% must vote in favor of a particular decision. इट इज नॉट द नंबर, इट इज द वोटिंग शेयर, Right, sir. है ना? Yes, sir. प्रोवाइडेड दैट फॉर Sir, अ वोट पहले टू बी नंबर भी कास्ट। रहना है ना सर। हाँ जी, टोटल 5000 क्रेडिटर्स है, हाँ, तो 5000 भी 5000 में 51% भी रहना। ना 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 ना, ऐसा कोई हो सकता है 5000 में 1000 ही आए, 1000 ही Okay. कास्ट वोट करें, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। Right, sir. I think So, sir is saying कि the 50% of the present and cast voted who have voted I think यस, मोर देन 50। more Right, than sir. 50% of the total voting people. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो Clarified, sir. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको, जैसे मान लीजिए देर आर सर्टेन डिसीजंस विच रिक्वायर 66% मेजोरिटी, है ना? हम्म, अब 66% मेजोरिटी में
भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। कोई बात नहीं, कई बार वो सर्च में नहीं मिल पा रहा जल्दी से, मैं देख लूंगा, बाद में भेज दूंगा आपको। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, है ना। सो आई विल शेयर ए कैलकुलेशन एक्चुअली बेस्ड इन एक्सेल, है ना। तो एक्सेल में कैलकुलेशन है वोटिंग शेयर पर, वो मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी January 25, ठीक है। January 25 में जाके ये ये शेयर हो रहा होगा मेरे ख्याल, है ना। अब नजर आ रहा है आपको, है ना। हम्म। Yes, sir. तो इसमें क्या है, ये देखिए, जैसे अब ये थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए, देर आर सम इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। जैसे ये लोन है, लोन फ्रॉम पीएनबी है, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, Yes, yes. है ना। तो Yeah. लोन फ्रॉम पीएनबी आपका 60 है, लोन फ्रॉम कैनरा बैंक 30 है, लोन फ्रॉम एसबीआई इतना, ड्यूज ऑफ होम बायर्स इतने, डिबेंचर होल्डर्स इतने, सप्लायर ड्यूज, एम्प्लॉयज ड्यूज, लोन्स टू डायरेक्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें सीओसी बनानी है, तो सीओसी हम कैसे बनाएंगे, सीओसी में हमारा टोटल में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, जो सप्लायर ड्यूज है दे विल नॉट बी इंक्लूडेड, है ना, बिकॉज दे आर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, Yes, sir. है ना। एम्प्लॉयज दे आर ऑल्सो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, Operating and creditors, loans yes. to director they are related parties, so they will not be included, Right, sir. है ना। so the COC will be consisting of this much only, यहां से लेकर के यहां तक का। तो Right, कितना sir. हो गया ये आपका हो गया, कितना हो गया, टोटल नजर आ रहा होगा कहीं। yes, 400. sir. हाँ 400 हो गया ना, तो 400 के हिसाब से अब इसका वोट शेयर डिसाइड हो जाएगा। वोट शेयर इसका कितना हो जाएगा, 15%, इसका Yes, हो sir. गया 7.5, इसका 2.5, इसका 50%, और इसका 25%, Yes, sir. ठीक है। नाउ सेकंड सिचुएशन, इन सेकंड सिचुएशन क्या है, इनका कोई वोट, इनका कोई लोन ही नहीं है, ओनली होम बायर्स है ना, इस तरह से।
Now let us take go to sheet number 2. Now in this case, suppose ये देखिए situation 1, CIRP can be initiated by whom under different situations. CIRP का भी दे दिया कि कौन कौन इनिशिएट कर सकता है भाई. इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दे कैन जॉइन हैंड्स आल्सो, है ना. Yes, sir. So these PNB, Canara Bank and SBI jointly or individually they can initiate. 400 home buyers they can also initiate. ठीक है. Yes, sir. CD all the debenture holders. Now let us see the voting. इसमें इस सीट में ना मैंने पूरा किया हुआ है वोटिंग ये. Now suppose who must vote for a resolution under section 12A, because section 12A will require 90% vote share, है ना. There could be 90%. different types of resolutions. A resolution is to be passed to remove the existing RP. It has to be approved by 66% majority, है ना. Yes, sir. So depending upon these situations, how they will be voting, this is given here. Now say these home buyers, they have got 50% vote share. ठीक है. Out of 200 home buyers, say only ये 200 home buyers में suppose only 100 attend 100 cast their vote. ऐसा हो सकता है ना. Yes, Suppose sir. 100 Yes. cast their vote. तो 100 में से suppose 60 have cast in a particular favor, and we are assuming that the debt of all those is same. So it basically, first of all we have to understand it that it is the vote share which is important, not the number. ठीक है. Correct, sir. But for the sake of simplicity, we are assuming that all the home buyers have got exactly the same amount of debt, है ना. So whether it is number or it is amount, it is all almost same. ठीक है. Correct. Suppose each has got debt of 1 lakh. ठीक है. 200 home buyers are there and each has got debt of 1 lakh rupees. Suppose only 100 cast their vote, and out of 100, 60 have casted vote in favor. That means if 60 have cast vote in favor, that means 200 have cast vote in favor. This is the meaning. ठीक है. क्लियर है अजय जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, तो ये वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं. ये जनवरी 25, इसको मैं एक बार कर ही देता हूँ सेव करके. जाके ये नहीं है वोटिंग. ठीक, अब मिल जाएगा, कोई दिक्कत. क्योंकि ये कई बार थोड़ा सा समझ में नहीं आता लोगों को. ये चल रहा है. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक तो मोर देन 50% है और दूसरा हु हैव कास्ट देयर वोट. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. प्रोवाइडेड दैट for a vote to be cast in respect of an application under section 12A, the authorized representative shall cast his vote in accordance with the provisions of subsection 3. तो अजय जी इसका मतलब बताइए. इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन 12A का वोट करना है, सेक्शन 12A में क्या है, 90% मेजोरिटी चाहिए, है ना. क्योंकि सेक्शन 12A क्या बात करता है, विड्रॉल ऑफ CIRP एप्लीकेशन. ठीक है, आफ्टर इट्स एडमिशन. तो उस केस में कह रहा है कि सबसेक्शन 3 के हिसाब से आपको करना, 3A के हिसाब से बात करके ही करना होगा. उसमें इंडिविजुअल आपको वोटिंग देखनी है. करेक्ट, है ना. क्लियर है. द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एनी इंस्ट्रक्शंस. अब ये भी नहीं कि भाई उन्होंने बोला कुछ ये कुछ कर दे वहां. ये जो वोटिंग इंस्ट्रक्शंस है उसको फाइल भी करेगा कि उन्होंने क्या बोला. ठीक है. द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall file with the committee of creditors any instructions received by way of physical or electronic means from the financial creditor he represents for voting in accordance therewith, to ensure that the appropriate voting instructions of the financial creditor
he represents is correctly recorded by the IRP or RP as the case may be. ऐसा नहीं कि वो बोले कुछ ये कुछ कराए अपने आप वोटिंग ना, अपना माइंड नहीं लगाना इसको, जो उन्होंने बोला है वैसा ही करना है, ठीक है। For the purposes of this section, the electronic means shall be such as may be specified. Section 26. Section 26 क्या बोलता है? Section 26 बोलता है application for avoidance of transactions not to affect proceedings. बट इससे पहले हम थोड़े रेगुलेशन भी देख लेते हैं, है ना। रेगुलेशन थे ना हमारे 36 से और 27-30, एक बार Yes, sir. 25 के साथ में रेगुलेशंस भी पढ़ लेते हैं। रिलेटेड रेगुलेशन है हमारे 27 to 30 और 36A। 36A। हाँ, 27 to 30, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स की बात कर रहा है ये, 40 है ना सर? 30 सर? है 37 to 40 है ना सर? 27 to 27 to 30 है और 30 36 है। तो 27 तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। सर इसमें भी बेसिकली क्या है कि व्हेन यू आर अपॉइंटिंग ए प्रोफेशनल, यू हैव टू सी दैट ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ही शुड Yes, नॉट sir. बी a relative of RP, he should not be a related party of the CD, he should not be an auditor of the CD at any time during the period of 5 years preceding 5 the years preceding. 5 years का पीरियड है यहाँ पर, है ना। And he should not be a partner or director of the insolvency professional entity of which the RP is a partner or Director. अच्छा, whether an employee of the CD can be appointed as a professional, No, sir. why there is no such bar? भाई, Mr. Ramlal is an employee of the CD, that company is now into CIRP, so whether he can be appointed as a professional, there is no bar। भाई रिलेटिव तो नहीं है वो आरपी का, रिलेटेड But- पार्टी भी नहीं है सीडी का। An employee cannot be become an IP, right? नहीं, आईपी की बात नहीं है ना, यहाँ तो वो क्या कह रहा है, आईपी पर है, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स को तो कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, उसमें कोई बात नहीं, वो he can be appointed on contract basis और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो करते हैं हम क्योंकि लोग अपॉइंट वैसे। करते ही हैं उनको नॉर्मली, हाँ, वैसे हम नहीं लोग करते करते ही ही हैं, वैसा। क्योंकि उनको नॉलेज होती है कंपनी की। भाई रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए सीडी का, है ना। Yes, sir. रिलेटेड पार्टी क्या है, वो केएमपी नहीं हो, या फिर ये कि एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो कि जिसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हो। बेसिकली नॉट एवरी एम्प्लॉय इज कवर्ड इन रिलेटेड पार्टी। Correct, sir. अगर हम देखें कि वेदर एवरी एम्प्लॉय इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी, द आंसर इज नो, है ना। When we appoint CS during the CRP period, if there is a position is under vacation, हाँ बहुत बार होता है सर कि CS नहीं है तो बट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए CS अपॉइंट करना पड़ता है ड्यूरिंग द CRP ऑल्सो। हाँ तो आप बोले सर KMP को अपॉइंट नहीं कर सकते ना, तो आई एम जस्ट हाँ, नहीं केएमपी तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना, वो तो 524 में कवर्ड है ना, इसलिए कह रहा हूँ। Yes, sir. वो की मैनेजर पर्सनल तो उसमें कवर्ड है ना, यस यस। इसीलिए नहीं कर सकते। नहीं सर, Because they are लेकिन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, मेरा मतलब कोई Yes, अकाउंटेंट sir. है, उसको तो Because आप कर KMP, they are part of the important decisions taken by the Yes, top management. right. And they are specifically covered in 524. Related party में cover होते हैं ना। But every employee, say Yes, there sir. is an accountant, क्या accountant कोई employee related party? The answer is no. The invoice for fees and other expenses incurred by a professional appointed under this regulation shall be raised in the name of the professional and be paid directly into the bank account of such professional. ठीक है। Transfer of debt due to creditors. In the event a creditor assigns or transfers the debt due to such creditor to any other person during the insolvency resolution process period, both parties shall within 7 days, ये चेंज हो गया इसमें, अब हो गया 7 days, पहले टाइम का लिमिटेशन नहीं था, अभी हो गया within 7 days of such assignment or transfer। ठीक है, तो they will provide the IRP or RP as the case may be, terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or अच्छा, सेल, whether sale of assets outside the ordinary course of business is allowed, वो कहता है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में सेल अनएनकम्बर्ड एसेट्स। ठीक है यस भाई, ऐसा हो सकता है कि सारे एसेट्स पर जरूरी नहीं लोन लिया हो उसने, कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिस पर लोन नहीं लिया हो, तो ही कैन सेल द अनएनकम्बर्ड एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच अ सेल इज नेसेसरी
फॉर ए बेटर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कैपिंग भी है। कैपिंग कितनी है? बुक वैल्यू के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। द बुक वैल्यू of all assets sold during CIRP period in aggregate under this sub-regulation shall not exceed 10% of the total claims admitted by the IR. ठीक है, a sale of assets under this regulation shall require the approval of the committee by vote of 66% of the voting share. ठीक है, तो 66% वोट भी लेना पड़ेगा। और जो इस पे कई सवाल पूछता है वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, जो बुक वैल्यू है, इट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल क्लेम्स एडमिटेड। 10% किसका? टोटल क्लेम्स एडमिटेड। इस पर सवाल पूछ लेता है, 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ वोट शेयर, 10% ऑफ टोटल डेट, 10% ऑफ टोटल क्लेम्स एडमिटेड। तो 10% ऑफ टोटल क्लेम्स एडमिटेड। A bona fide purchaser of assets sold under this regulation shall have a free and marketable title. Assistance of local administration they can take. उसके बाद में रेगुलेशन 36 से देख लेते हैं क्या कहता है रेगुलेशन 36 से। इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, चलो ये बाद में कर लेंगे, अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम सेक्शन 26 पर चलते हैं, है ना? यस सर। तो एक बार पूरा कवर कर लेते हैं आज CIRP, उसके बाद में फिर कल से रेगुलेशंस कर लेंगे। 27 talks of replacement of the RP by committee of creditors. So 26 I think skip. हाँ, 26 में क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट टू इफेक्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब ये है कि अगर आपने अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की है, वो सेपरेट एप्लीकेशन फाइल होती है। ठीक है, और उसका CIRP से कोई लेना देना नहीं है। मतलब CIRP अलग चलेगी, वो अलग चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसका डिसीजन आना जरूरी है ना। द आंसर इज वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो प्रोसीडिंग सेपरेट चलेंगी, CIRP प्रोसीडिंग सेपरेट चलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेजोल्यूशन प्लान पास हो जाए और इनका डिसीजन नहीं आए, है ना? तो नॉर्मली इन रेजोल्यूशन प्लान इटसेल्फ दे इंडिकेट कि भाई अगर कोई रिकवरी हो गई, ठीक है, इन किसके पास जाएगा वो mention उसको करते हैं। पैसा किसको मिलेगा? वो क्रेडिटर को मिलेगा, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को मिलेगा, CD को मिलेगा। ये सब बातें रेजोल्यूशन प्लान में क्लियर हो जाती है। राइट। ठीक, तो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग चलती। ये 26 इतना ही। 27 रिप्लेसमेंट ऑफ RP बाय COC। ठीक है, एक तो ये है कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें भी चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो पहली बार कर सकते हो। वो कौन सा सेक्शन है हमारा? वो 22 सर। section? हाँ जी, 22 कहता है कि भाई आप फर्स्ट मीटिंग में ही चेंज कर सकते हो विद 66। लेकिन आपने फर्स्ट मीटिंग में चेंज नहीं किया। ठीक है, 4-5 मीटिंग हो गई, उसके बाद में आप सोच रहे हो भाई चेंज कर दो, क्या चेंज कर सकते हो? वो 27 में। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये तो क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिशन लेना पड़ता सर। वो तो है ही। सबसे पहले तो COC अप्रूव करेगी विद 66%। यस सर। उसके बाद में दे विल पुट अप द अप्रूवल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अप्रूव कर देगी। ये है। But like you said, after 5 or 6 meetings, so they should take the permission of the adjudicating authority. No. First of all, they have to pass a resolution. In 22 Yes, sir. also they have to pass a resolution. Yes, sir. 22 और 27 में फर्क क्या है? 22 बात करता है फर्स्ट COC मीटिंग में रिप्लेसमेंट की। 27 बात करता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपने रिप्लेस नहीं किया, हो Right, सकता है 10 मीटिंग के बाद में आपका मन हुआ भाई यार इसको चेंज कर दो। तो ये वो बात करता है। Where at any time during the CIRP period, ठीक है, the COC is of the opinion that a resolution professional appointed under section 22 is required to be replaced. It may replace him with another resolution professional. ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में एट ए मीटिंग, सबसे पहली बात तो मीटिंग करनी पड़ेगी बाई वोट ऑफ 66% ऑफ द वोटिंग शेयर रिजॉल्व टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन पर्सनल। ठीक है, जो 22 में अपॉइंट किया था उसको रिप्लेस करना विद अनदर। सब्जेक्ट टू क्या लेना उससे? एक तो रिटर्न कॉन्सेंट लेना जो नया आएगा, है ना, और कमिटी इसका नाम फॉरवर्ड कर देगी किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी फॉर इट्स कंफर्मेशन। ठीक है, and a resolution professional shall be appointed in the same manner as laid down in section 16.
अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है जो नया प्रपोज किया है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 शेल कंटिन्यू टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर दिस सेक्शन। Right, sir. ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी, कोई सवाल इसमें आपका? नहीं सर, नहीं सर। 28 क्या 28 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो क्या कहता है? अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सीओसी की अप्रूवल की जरूरत है, और वर्ड क्या लिखा है? प्रायर अप्रूवल। तो क्या पोस्ट फैक्टो अप्रूवल काम करेगी? नहीं, ये आंसर इज नो। और मान लीजिए प्रायर अप्रूवल के बिना कोई काम कर दिया, तो क्या होगा? वो एक्शन वॉइड हो जाएगा। ऐसा सेक्शन में लिख दिया गया। ठीक है, तो 28 अगर आप ये देखोगे 28(4), तो 28(4) बोलता है सच एक्शन शैल बी वॉइड। कौन कौन से डिसीजन है जिसमें 66% मेजोरिटी चाहिए? पहला, रेज एनी इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज में बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन देयर मीटिंग। ठीक है, सीओसी ने डिसाइड किया हुआ है कि भैया देखो 50 लाख रुपए तक का इंटरिम फाइनेंस लेना हो तो आप रेज कर लेना, आरपी को बोल रखा है। उससे ज्यादा का हो तो हमसे अप्रूवल ले लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि द आरपी हैज रेज्ड इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स ऑथराइज्ड बाय द सीओसी, so what action is required to be taken? So he has to take approval of the COC, prior approval of the COC with 66% majority. ठीक है, create any security interest over the assets of the corporate debtor। ठीक है, उसको कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना तो उसके लिए भी सीओसी का अप्रूवल। चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? चाहे यू में इशू एडिशनल सिक्योरिटीज, यू में क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, या बाइंग बैंक, रिडेम्पशन, है ना? तो उस केस में भी कैपिटल स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा ना, डेट इक्विटी चेंज हो जाएगा। इन केस द कॉर्पोरेट डेटर इज ए कंपनी, रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इसका क्या मतलब है? कोई भी चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट, उसके लिए भी सीओसी का अप्रूवल का जरूरत है। गिव इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर ए डेबिट ट्रांजैक्शन from any such accounts in excess of the amount as may be decided by the committee of creditors in their meeting। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस पर काम करेंगे। किसकी? आरपी की, है ना? पढ़ा था ना हमने। तो अब इसमें डेबिट के लिए एक लिमिट लगा सकती है सीओसी कि भैया ऐसा है, ऐसा नहीं कि सारा ही माल निकाल ले आरपी। अगर 10 लाख तक का डेबिट है तो ठीक है, एक एग्जांपल है ना? उससे ऊपर हो तो हमसे पूछ करके करना एक्शन। इंस्ट्रक्शंस दे सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक कैप लगा सकती है कि क्रेडिट पे कोई कैपिंग की जरूरत नहीं है, जितना आता माल आने दो, आने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ। अंडरटेक एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए भी सीओसी से अप्रूवल की जरूरत है। इसका दूसरा भी एक एंगल है कि भाई whether you can undertake transactions with related parties, the answer is yes। भाई ऐसा हो सकता है कोई एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है, उससे ही लेना पड़ेगा माल, है ना? तो रिलेटेड पार्टी पर कोई बैन नहीं है। यू कैन अंडरटेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस इवन ड्यूरिंग सीआईआरपी पीरियड। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज सीओसी का अप्रूवल लेना विद प्रायर अप्रूवल। यस, amend any constitutional documents of the corporate debtor, delegate its authority to any other person। अब इसको अगर कोई अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है तो भी इसको सीओसी से अप्रूवल लेना है। इस पे कई बार सवाल आ जाता है एग्जाम में कि मान लीजिए कोई कैटरैक्ट सर्जरी है, कुछ है, उसको ही वो थोड़े दिन के लिए उसको लीव लेनी है मान लीजिए, है ना, और डेलीगेट करनी है अपनी अथॉरिटी, तो सीओसी से अप्रूवल लेगा। ठीक है, और फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको भी इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने किया। डिस्पोज ऑफ और परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और देयर नॉमिनीज टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर है अगर अपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है तो उसके लिए भी सीओसी का अप्रूवल चाहिए। मेक एनी चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और इट्स सब्सिडरी, सीडी की मैनेजमेंट में चेंज करना या उसकी सब्सिडरी में चेंज करना, तो भी सीओसी का अप्रूवल का जरूरत है। Yes, sir. Yes, sir. Transfer rights or financial debts or operational debts under material contracts otherwise than in ordinary course of business। ठीक है, इसका क्या मतलब?
आप कोई ट्रांसफर करना चाहते हो, राइट्स या फाइनेंशियल डेट्स या ऑपरेशनल डेट्स अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल एज स्पेसिफाइड बाय द सीओसी, और मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो ये मेजर डिसीजंस हैं, ये सारे डिसीजन आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए सीओसी का। The resolution professional shall convene a meeting of the committee of creditors and seek the vote of the creditors prior to taking any of the actions under subsection 1. No action under subsection 1 shall be approved by the committee of creditors unless approved by a vote of 66% of the voting share. ठीक है, तो 66% वोटिंग शेयर से कम पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाए। Where any action under subsection 1 is taken by the RP without seeking the approval of the committee of creditors, such action shall be void. ये भी इंपॉर्टेंट है। The committee of creditors will report, अच्छा मान लीजिए इसने कोई एक्शन ले लिया, तो ये क्या करेंगे, ये रिपोर्ट करेगी सीओसी किसको, बोर्ड को, बोर्ड मतलब आईबीपी, Board. Yes, sir. फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट हिम अंडर द कोड। Because board is the, disciplinary authority, no, sir? यस यस यस, बोर्ड में टेक डिसिप्लिनरी एक्शन ना, कि भाई देखो सीओसी का अप्रूवल था, तुमने अपने आप क्यों कर लिया ये। Yes, sir. नाउ 29 सर, टॉक्स ऑफ एक ओनरशिप इंटरेस्ट के ऊपर कुछ बताइए सर, इस पे है जी? ओनरशिप इंटरेस्ट थोड़ा सा इस पे डिस्कस करिए, थोड़ा सा क्या है हाँ, पॉइंट नंबर है इसका डी। हाँ, रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट। देखिए ऐसा है कि जो भी कॉर्पोरेट डेटर है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, है ना। बेसिकली अगर मान लीजिए ओनरशिप इंटरेस्ट में चेंज हो गया, ओनरशिप इंटरेस्ट चेंज का मतलब क्या है कि ओनर ही चेंज हो गया उसका, है ना। तो अगर शेयर होल्डिंग बेसिकली, है शेयर होल्डिंग बेसिकली, शेयर होल्डिंग, हाँ शेयर होल्डिंग, हाँ तो शेयर होल्डिंग अगर चेंज हो गई, भाई देखो मैनेजमेंट के ये बेसिकली क्या है, जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड वाली प्रोविजंस है ना, वो लागू हो जाते हैं इसमें। क्योंकि ये भाई अगर आपने शेयर्स कोई भी बेच खरीद दिए तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप यहीं पर आओगे ना, कंपनी के पास लॉन्च करोगे, है ना, कि भाई ये मैंने खरीद लिए, बेच दिए। तो वो जब चेंज को रिकॉर्ड करेंगे तो उस वो फिर सीओसी के अप्रूवल के बिना नहीं होगा, बेसिकली बात ही है। right, because they have lent, COC have lended the money and without the approval of यस, ऐसा नहीं कि वो भाग जाए। right. Now 29, preparation of information memorandum. The resolution professional shall prepare an information memorandum in such form and manner containing such relevant information as may be specified by the board for formulating a resolution plan. भाई पर्पस क्या है इसका, ये रेजोल्यूशन प्लान बनाना पर्पस है, ठीक है। The resolution professional shall provide to the resolution applicant access to all relevant information in physical and electronic form, ठीक है। तो फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लिखा है, दोनों देनी है। प्रोवाइडेड such a resolution applicant undertakes to comply with the provisions of law for the time being in force relating to confidentiality and insider trading, to protect any intellectual property of the CD, not to share relevant information with third parties under clauses A and B of this subsection are compliant. For the purpose of this subsection, relevant information means the information required by the RP to make the RA to make the resolution plan for the corporate data, which shall include the financial position of the corporate data, all information relating to disputes by or against the corporate data, and any other matter pertaining to corporate data as may be specified. तो रेजोल्यूशन जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें ये चीजें देनी है। इसके साथ में हमारा रिलेटेड रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 36। तो रेगुलेशन 36 को भी साथ में पढ़ लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में देना क्या क्या है। देखिए ऐसा है, एक तो आपकी बुक्स है। अब बुक्स में तो बुक्स डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर, है ना। जिस आदमी ने कंपनी टेक ओवर करनी है उसको तो एक्चुअल सिचुएशन चाहिए, है ना, कि भाई कंपनी में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है। तो वो 36 बताता है, क्या कहता है। सबसे पहले तो इसकी डेट है कि कितने दिन में देना है। सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 4, the RP shall submit the information memorandum in electronic form to each member of the committee on or before the 95th day from the insolvency commencement date, ठीक है। 95 दिन के अंदर इसको दे। The information memorandum में क्या क्या होगा ये सारा दिया। The information memorandum shall highlight the key selling propositions and contain
all relevant information which serves as a comprehensive document conveying significant information about the corporate debtor, including its operations, financial statements to the prospective resolution applicant and shall contain the following details of the corporate debtor. तो ये डिटेल इसके अंदर आएंगी। क्या और कौन सी डिटेल है? एक तो इसमें डेट है, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ द कमिटी को कब तक देना है इसको? ऑन और बिफोर द 95th day ये from इस पे सवाल insolvency पूछ लेता commencement है, date. एक सवाल तो इस पे पूछ लेता है नॉर्मली, ठीक है। और डिटेल्स कौन कौन सी हैं? डिटेल्स यही है। सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, विद सच डिस्क्रिप्शन as on the insolvency commencement date as are generally necessary for ascertaining their values। मतलब उससे उसकी वैल्यू पता चले, हमें कोई बुक वैल्यू नहीं देनी है इसमें, है ना। डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द डिटेल्स सच एज डेट। मान लीजिए कार है, अब कार में वो देगा कि कौन सी डेट को एक्वायर की थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो उसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी दे देंगे। मान लीजिए कोई लैंड है तो कहां सिचुएटेड है, एंड एनी अदर रेलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी है, एसेट्स की भी डिटेल देनी है, लायबिलिटीज की भी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। पर्पस क्या है? पर्पस इज कि उसकी वैल्यू पता चल सके, ऐसी आपको डिटेल देनी है जिसके उस एसेट की या लायबिलिटी की वैल्यू पता चल सके। लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, audited financial statements of the corporate debtor for the last 2 financial years and provisional financial statement for the current financial year made up to a date not earlier than 14 days from the date of the application, ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट देनी है आपको, ठीक है, नॉट अर्लियर देन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपने CIRP की एप्लीकेशन लगाई है उससे 14 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। A list of creditors containing the names of creditors, the amounts claimed by them, the amount of their claims admitted, and the security interest, if any, in respect of such claims, ठीक है। क्योंकि सर, एक क्रेडिटर्स क्वेश्चन के था सर। पूरी डिटेल जाएगी आपके पास। नेम्स ऑफ क्रेडिटर क्या है? एक चार्ट चला जाता है, अमाउंट क्लेम्ड बाय देम, अमाउंट ऑफ देयर क्लेम्स एडमिटेड, एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इफ एनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम्स। पर्टिकुलर्स ऑफ अ डेट ड्यू फ्रॉम और टू द कॉर्पोरेट डेटर विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो जो डेट ड्यू है फ्रॉम या टू द सिटी, रिलेटेड पार्टीज वाले, उसकी डिटेल आपको अलग से देनी है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ गारंटीज दैट हैव बीन गिवन इन रिलेशन टू द डेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय अदर पर्संस स्पेसिफाइंग विच ऑफ द गारंटर्स इज ए रिलेटेड पार्टी, ठीक है। मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट डेटर ने डेट ले रखा उसके लिए किस किस ने गारंटी दे रखी है और उन गारंटर्स में कौन रिलेटेड पार्टी है, ये डिटेल आपको देनी है। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स और पार्टनर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% स्टेक इन द कॉर्पोरेट डेटर अलोंग विद द साइज ऑफ द स्टेक। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? एटलीस्ट 1%। तो 1% जिसके पास है उसका नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स दे रहे Yes, sir. अलोंग विद द साइज ऑफ द स्टेक। डिटेल्स ऑफ, अब इसमें वो अलग अलग दे सकता है, एटलीस्ट 5%, 10%, है ना। Grandson of Narayan Murthy also will be one of the shareholders, sir. तो उनको 1% शेयर्स दिया सर, उनको गिफ्ट। हाँ, NR नारायण मूर्ति के ग्रैंडसन। हाँ, So his name also should be given. yes. Details of all material litigation and an ongoing investigation or proceeding initiated by government and statutory authority। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो है लिटिगेशन, एक है इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग, दोनों अलग अलग चीजें। जितने भी मटेरियल लिटिगेशन है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हो, तो जो भी मटेरियल लिटिगेशन है उसकी डिटेल देनी है। और अगर कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है या प्रोसीडिंग है विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे PMLA का हो सकता है कोई केस, है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो सकता है, CBI का, वो सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज एंड लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टुवर्ड्स देम। उसके बाद में कंपनी ओवरव्यू इंक्लूडिंग स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, की कॉन्ट्रैक्ट्स, key investment highlights and other factors which bring out the value as a going concern
ओवर एंड अबाउट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ना, आप अपनी कंपनी के साथ मर्ज करोगे, हो सकता है आपको फायदा हो जाए उनका, तो इसके लिए प्लस पॉइंट है ना। इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी कोई पड़ा हुआ है, वो आप अपनी कंपनी में यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली एसेट्स हो गए ना, फेवरेबल फैक्टर्स हो गए, है ना। की एम्प्लॉइज, Yes, sir. की कस्टमर्स, सप्लाई चेन लिंकेजेस, यूटिलिटी कनेक्शंस, कोई पावर का कनेक्शन है मान लीजिए, है ना, 1000 किलोवाट का है, आजकल मिलता नहीं है, एंड अदर प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें जो है ये आप हाईलाइट कर। डिटेल्स ऑफ बिजनेस एवोल्यूशन, बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, एंड की ग्रोथ ड्राइवर्स इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटार हैविंग बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सीडिंग 100 crore रुपीस एज पर द लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू भी देनी है, प्रोवाइडेड दैट द कमिटी में डिसाइड नॉट टू डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू इफ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसिडर्स सच नॉन डिस्क्लोजर टू बी बेनिफिशियल फॉर द रेजोल्यूशन प्रोसेस। नॉर्मली आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में फेयर वैल्यू भी देनी है, लेकिन सीओसी में डिसाइड कि भाई फेयर वैल्यू मत दो। ठीक है, ये चेंज है, इसीलिए मैंने इसको रेड में मार्क किया। AA। हाँ, अदर इंफॉर्मेशन विच द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डीम्स रेलेवेंट टू द कमिटी। ठीक है, a member of the committee may request the RP for further information of the nature described in this regulation, and the resolution professional shall provide such information to all members within reasonable time if such information has a bearing on the resolution। ठीक है, तो मेंबर जो है कमेटी का कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन दिस रेगुलेशन, जो इस रेगुलेशन में दिया गया है ना, और आरपी उसको प्रोवाइड कर देगा विद इन रीजनेबल टाइम इफ सच इंफॉर्मेशन हैज ए बेयरिंग ऑन द रेजोल्यूशन। ठीक है, द क्रेडिटर शैल प्रोवाइड टू द आरपी द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा अवेलेबल विद देम। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन होगी पुरानी, वो भी दे देंगे। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल शेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम after receiving an undertaking from the member of the committee to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under subsection 2 of section 29। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में। सेक्शन रेगुलेशन 36A भी पढ़ लेते हैं। 36 से क्या बोलता है? 36 से बोलता है इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। भाई सबसे पहले तो आप इनविटेशन दोगे ना, ये इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेसिकली? ये बेसिकली जैसे आपने अपने बच्चे की शादी करनी हो तो आप क्या करोगे, पेपर में ऐड देते हो, है ना, पूरी नाम कहानी तो नहीं दे देते ना, उस ब्रीफ पर्टिकुलर्स देते हो। तो ऐसे ही यहां पर भी आप ब्रीफ पर्टिकुलर्स दोगे पेपर में। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल पब्लिश ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म जी ऑफ द शेड्यूल 1 एट द अर्लीस्ट नॉट लेटर देन 60th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट नॉट लेटर देन 60th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब तक बनाना था आपको? 95th डे। हाँ, और ये देखिए ये पहले है ना, इसका सर मतलब ये कि इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप पहले इशू करो 60th दिन। बट सर IM के बेस पे ही तो हम लोग ये पब्लिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब देखिए ऐसा है, अब जैसे शादी करनी है लड़की की, सब चीजें साथ साथ शॉपिंग भी चलती रहती है, ये भी चलता रहेगा। ये पेपर में ऐड दे दी, जैसे पहले तो पेपर में ही ऐड दोगे ना आप, तब तक वो तैयार करते रहोगे वहां से। हम्म। भाई जैसे आप, जैसे CIRP की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ठीक है, सबसे पहले आप 3 दिन में आपने क्या करना है कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है ना। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद 14 डेज में आपके पास क्लेम आ जाएंगे, विद इन 7 days यू हैव टू वेरीफाई द क्लेम्स, और 2 दिन और ले लीजिए आप, ARB है तो फिर विद इन 7 days यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग COC, है ना। 30 डेज हो गए आपके। 30 डेज के बाद में आपको फिर COC की मीटिंग करनी है। अब COC की मीटिंग में आप क्या करोगे? COC की मीटिंग में आप वो चीजें डिसाइड कर लोगे क्या, कि क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया था ना 25(2)(h) में, Yes, yes. है ना भाई। सीओसी मीटिंग में डिसाइड करोगे ना कि भाई जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए किस टाइप का रेजोल्यूशन प्लान हमें चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें उसके बाद में फिर आप ये दे दोगे आपको फॉर्म जी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी may invite a resolution plan for each real estate project or group of projects of the corporate data, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो हर एक ग्रुप के लिए भी वो इनवाइट कर सकता है, या Correct. अलग अलग कर सकते हैं. हाँ। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल पब्लिश फॉर्म जी, कहां पर पब्लिश करना है, ये फॉर्म जी आपको पब्लिश करना है इन 1 इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है, with wide circulation at the location of the registered office and principal office if any of the corporate data and any other location जो भी important है, on the website if any of the city, on the website if any designated by the board, in any other manner as will be decided by the committee, ठीक है। अब ये फॉर्म जी में क्या लिखा जाएगा, पहले तो फॉर्म जी देख लेते हैं हम कि फॉर्म जी होता क्या है, उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले फॉर्म जी पर चलते हैं। Sir, the very term expression of interest should be brief, sir. हाँ Because if you see the advertisement in the papers, कभी कभी आता sir, हाँ ये है expression फॉर्म, of interest, it be very brief, sir. हाँ ये है फॉर्म जी हमारा, ठीक है। तो फॉर्म जी में क्या बोल रहा है ये, invitation for expression of interest, name Yes, of sir. the corporate data operating in industry type at locations, Location, right. ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज किया है अभी इन्होंने, हाँ. name of the city along with PAN, SIN, address, URL of the website, details of the place where majority of fixed assets are located, installed capacity of main product services, quantity and value of main product services sold in last year, number of employees workmen, further details including last available financial statements with schedules of 2 years, list of creditors are available at URL, ठीक है। eligibility for resolution applicants is available at URL, वो एलिजिबिलिटी वहां पर दे देंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। फिर लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनल लिस्ट, डेट ऑफ इशू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवेल्यूशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है ये हर एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को नहीं दे रही है, ठीक है। जो क्राइटेरिया मीट करते हैं जो लिस्ट में आएंगे उन्हीं को देंगे ये, Yes, sir. इसीलिए तभी 95 डेज में वो तैयार कर रहे हैं ना, इधर 60 डेज में ये मंगा लिया, तब तक इनके डेटा चेक कर लेंगे सबके कि ये एलिजिबल भी हैं या नहीं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, देन प्रोसेस ईमेल आईडी टू सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में Sir, ये कॉर्पोरेट process email ID, sir, ये process email ID मतलब for every project a process email ID must be created, ना sir? हाँ बिल्कुल 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 वो करते हैं, हाँ। डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा रजिस्ट्रेशन स्टेटस एज MSME, है ना। ये थोड़ा बहुत चेंज किया है, जैसे 3 फरवरी को चेंज किया है ये वाला Yes. MSME वाला, पहले नहीं था ये, है ना। तो अब दोबारा चलते हैं हम अपना 36A पर। तो ये डिटेल्स, अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। Yes, sir. Yes, sir. ये तो फॉर्म जी में क्या होगा, फॉर्म जी तो देखो ब्रीफ है ना, ये बता देगा कि भाई कहां से आपको डिटेल्ड इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या तो डाउनलोड हो जाएगा या ऑब्टेन फ्रॉम, या तो फिजिकल कॉपी मिल जाएगी, वो URL दे देते हैं, है ना, कि भाई यू कैन डाउनलोड दी डिटेल्ड इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस प्लेस। अब आप ये देखिए कि ये जो डिटेल्ड इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी उतनी डिटेल नहीं है जितनी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, है ना। पहले इन्होंने बिल्कुल ब्रीफ दी डिटेल, उसके बाद में अब ये डिटेल्ड इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। बेसिकली दे वांट टू गेट मोर एंड वांट टू गिव लेस, ठीक है। ये पहले उसको जज करेंगे ना जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, भाई तुम बताओ अपने बारे में, है ना। उसके बाद में तो अगर वो हमें ठीक लगेगा तभी तो उसको अपने पर्टिकुलर्स देंगे ना, ये चीज। प्रोवाइड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट which shall not be less than 15 days from the date of issue of detailed invitation, ठीक है। तो ये टाइमलाइन सारी इंपॉर्टेंट है, इस पर कहीं भी सवाल पूछ लेते हैं। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इट शैल नॉट बी लेस देन
15 days from the 15 date days of from issue the of date of issue of detailed, detailed invitation. ठीक है। और डिटेल्ड इन्विटेशन में क्या रहेगा, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, अभी हम पढ़ रहे थे ना 25 में, इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25, state the ineligibility norms under section 29A to the extent applicable for prospective resolution applicants. Provide such basic information about the corporate data as may be required by a prospective resolution applicant for expression of interest. इनको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट द सीडी, ठीक है। नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फीस और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट, एक तो फीस नहीं ले सकते और कोई नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं ले सकते, इसका मतलब रिफंडेबल डिपॉजिट आप ले सकते हैं, ठीक है, टू अवॉइड एनी नॉन सीरियस एप्लीकेंट्स, वरना कोई मजे लेने के लिए कह दे भाई मुझे भी दे दो डिटेल, है ना, तो यू कैन आस्क फॉर रिफंडेबल डिपॉजिट। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स रजिस्ट्रेशन स्टेटस एज ए एमएसएमई इन अकॉर्डेंस विद एमएसएमई एक्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द कमिटी फॉर एन एसोसिएशन or group of allottees in such real estate project representing not less than 10% or 100 creditors out of the total number of creditors in a class, whichever is lower, may relax the following. मान लीजिए कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अब वो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वहां उन्होंने कोई अपनी कमेटी बना रखी है, ठीक है, मतलब कोई एसोसिएशन बना रखी है या ग्रुप ऑफ अलॉटीज बना रखी है कि भाई हम ही एक्सिक्यूट कर देंगे इस प्रोजेक्ट को, वो कितने होने चाहिए, या तो 10% हो कम से कम या 100 क्रेडिटर्स, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रिलैक्स कर सकते हैं, कमेटी ये क्राइटेरिया रिलैक्स कर सकते, क्या सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसलिए मतलब ऐसा है कि जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए कोई बाहर का भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वहां वाले जो बंदे हैं जो होम बायर्स हैं वो कहते हैं हम खुद ही बना देंगे इस प्रोजेक्ट, भाई 99% कंप्लीट है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ऐसा भी डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, राइट राइट राइट, तो उस केस में वो ये कहता है कि कमेटी ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ओके, किस केस में, अगर उन्होंने कोई एसोसिएशन बना रखी है लेकिन उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया है, कितना, या तो 10% होना चाहिए या फिर 100 क्रेडिटर्स नंबर्स आउट में, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या रिलैक्स कर सकते हैं, पहला एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, भाई दूसरों के लिए हो सकता है रिफंडेबल डिपॉजिट ले लें, इनसे ना लें, है ना, और दूसरा कंडीशंस रिगार्डिंग द रिफंडेबल डिपॉजिट, तो रिफंडेबल डिपॉजिट या जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मान लो टर्नओवर का हो सकता है, किसी और चीज का हो सकता है ना, भाई उन्होंने बाकी वो कह रखा है कि जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, इसमें नेटवर्थ रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब रिलैक्सेशन कुछ भी कंडीशंस पे कर सकते हैं, ठीक है। Any modification in the invitation for expression of interest may be made in the manner as the initial invitation for expression of interest was made, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन भी हो सकती है इन द इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोवाइड दैट सच मॉडिफिकेशन शैल नॉट बी मेड मोर देन वंस, तो क्या फॉर्म जी भी दोबारा पब्लिश हो सकता है ना। ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हु मीट्स द रिक्वायरमेंट of the invitation for expression of interest may submit expression of interest within the time specified in the invitation under clause B of subregulation 3, ठीक है। तो वो क्या बोला उसने, कितने दिन के अंदर सबमिट करना है आपको, सर जो फॉर्म जी में टाइम लाइन स्पेसिफाइड it shall not be less than 15 days from the date of issue of the detailed invitation, मतलब मिनिमम टाइमलाइन दे रखी है कि 15 दिन तो कम से कम देने पड़ेंगे उसको, राइट, 15 दिन कहां से देने पड़ेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द डिटेल्ड इन्विटेशन, ठीक है, चलिए। The expression of interest received after the time period specified in the invitation under clause B of subregulation 3 shall be rejected। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाद में रिसीव होता है तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, द आंसर इज नो, तो वहां पर वो रिजेक्ट हो जाए, टाइमलाइन तो स्ट्रिक्ट है ना इसलिए। एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अनकंडीशनल, ये नहीं कि उसमें कुछ कंडीशन लगा दो, अनकंडीशनल होना चाहिए, और क्या क्या लगाना है, सबसे पहले एक तो अंडरटेकिंग लगानी है,
by the prospective resolution applicant that it meets the criteria specified by the committee. ठीक है, अंडर क्लॉज H of subsection 2 of section 25, कि जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं. अंडरटेकिंग देनी, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स इन एविडेंस ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया, जो उसके पास रिकॉर्ड है, मान लीजिए नेटवर्थ का है, टर्नओवर का है, जो भी है ना, फंडिंग का है, इंप्लीमेंटेशन का है, तो सारी चीजें उसको देनी. एंड अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दैट इट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी इनएलिजिबिलिटी अंडर 29A टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल. 29A में जो हम कल पढ़ेंगे, 29A में इनएलिजिबिलिटी दे रखी है. Yes, sir. है ना, तो उसकी बात करें. Yes, sir. Persons who are not eligible हाँ, to be yes. RP, sir. RA, sir. Relevant information and records to enable an assessment of ineligibility under clause C. ठीक है. And undertaking by the prospective resolution applicant that it shall intimate the RP forthwith if it becomes ineligible at any time during the CIRP process. मान लीजिए अभी वो एलिजिबल है, बाद में वो इनएलिजिबल हो जाए, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग दे देगा कि अगर वो बाद में भी इनएलिजिबल होगा तो भी बताएगा. ठीक है. And undertaking by the PRA, prospective resolution applicant, that every information and records provided in expression of interest is true and correct, and discovery of any false information or record at any time will render the applicant ineligible to submit resolution plan, forfeit any refundable deposit, and attract penal action under the code. ठीक है. And undertaking by the prospective resolution applicant to the effect that it shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person, and comply with the requirements under subsection 2 of section 29. ठीक है. एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी इसको, क्योंकि देखो इसको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, तो ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी भाई, ये इससे कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा. The resolution professional shall conduct due diligence based on the material on record in order to satisfy that the prospective resolution applicant complies with the provisions of clause H of subsection 2 of section 25, the applicable provisions of section 29A, and other requirements as specified in the invitation for expression of interest. ठीक है. The resolution professional may seek any clarification or additional information or document from the prospective resolution applicant for conducting due diligence under sub regulation. ठीक है. कोई भी उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए ले सकता है. ठीक है. The resolution professional shall issue. अभी देखो अभी क्या है, उसने क्या दिया है, डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है. डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ने उस जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसने अपने बारे में बताया है ना, कि भाई मेरी ये नेटवर्थ है, मेरी ये टर्नओवर है, मैं आई डोंट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द इनएलिजिबिलिटी, ये सारी बातें. इसको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी होगी आरपी को ले लेगा उससे. उसके बेसिस पर आरपी क्या करेगा, एक प्रोविजनल लिस्ट बनाएगा ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. प्लीज अप्रिशिएट, अभी तक उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं दिया गया है ना. ये एक प्रोविजनल लिस्ट बनाएगा एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की. कितने दिन के अंदर? विद इन 10 days ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. एंड टू ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. किसको दिया? टू द कमिटी. एक तो कमिटी को दे दिया, और जितने भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो सबमिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. एनी ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे बी मेड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट. अगर किसी को ऑब्जेक्शन है ना, तो वो क्या है, 5 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है. 10 days के बाद another 5 days, after another 5 days. यस यस, हाँ हाँ. प्रोविजनल लिस्ट इसने इशू किया ना 10 days में. Yes, sir. उसके बाद में 5 days में ऑब्जेक्शन हो सकता है. On considering the objections received under sub-regulation 11, the resolution professional shall issue the final list of prospective resolution applicants within 10 days of the last date for receipt of objections to the committee. ठीक है. अब थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें अगर और लानी हो
तो आपको इसके साथ में रेगुलेशन 40A पढ़ लेना चाहिए, टाइमलाइंस वाला, है ना। तो 36B पढ़े, इससे पहले हम जरा एक बार टाइमलाइंस देख लेते हैं कि टाइमलाइंस कौन कौन से। ये देखिए, ये टाइमलाइंस है, ठीक है। सबसे पहले 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, क्लेम्स आ गए आपके 14 डेज में, यहां तक क्लियर है। फिर आपने 7 डेज में वेरिफिकेशन कर लिया क्लेम्स का, है ना। AR आपने अपॉइंट कर लिया विद इन 2 डेज। फिर रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, फर्स्ट मीटिंग आपने विद इन 7 डेज करनी है, तो आप T+30 डेज हो गए आपके। तो रेजोल्यूशन टू अपॉइंट RP बाय द COC, फर्स्ट मीटिंग में हो गया, ये भी आगे चलो। उसके बाद में IRP परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ RP till the RP is appointed, maximum by 40th. Appointment of valuer within 7 days, है ना, but not later than 47th day. Submission of application for withdrawal. अच्छा, ये इसके लिए फिर PUFE ट्रांजेक्शन्स के लिए है। PUFE ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या है? RP to form an opinion within 75 days, make a determination 115 and filing application within 130 days, ठीक है। Submission of information memorandum within 95 days, पब्लिश फॉर्म जी 60 डेज, है ना। और फिर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? कम से कम 15 दिन देने पड़ेंगे आपको, 15 दिन, yes sir. तो T+75 हो गया। प्रोविजनल लिस्ट आपको 10 दिन में देनी है, तो T+85 हो गया। ऑब्जेक्शन 5 डेज में देने, After another तो 5 days. T+90 हो गया। और फाइनल लिस्ट विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन, तो T+100 हो गया। अब उसके बाद में फिर आप क्या करोगे? विद इन 5 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ फाइनल लिस्ट, आप इनको इश्यू ऑफ RFRP इंक्लूडिंग इवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दे दोगे विद इन 5 डेज, ठीक है। तो वो हमारा रेगुलेशन 36B है। तो एक बार रेगुलेशन 36B भी पढ़ लेते हैं। ये है 36B RFRP। अब हमने क्या किया है, जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट लाए हमने उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, किसी का ऑब्जेक्शन था वो भी हमने रिमूव कर दिया, फाइनल हो गया। अब हमने उनको देना है RFRP, ठीक है, कि भाई अब आप डिटेल्ड में प्लान दो। अभी तक तो हम उसको ही चेक कर रहे थे कि वो ठीक है कि नहीं। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 5, इसको आप मैट्रिमोनियल अलायंस से जोड़ करके पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। मैट्रिमोनी में भी ऐसे ही करते हो आप, है ना। जब आपको रिश्ता करना होता है, आप पहले पेपर में ऐड देते हो, फिर उसको कहते हो भाई तुम अपना जन्म पत्री दो, पूरी डिटेल दो, है ना। फिर हम उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सपोज हमारे पास 20 प्रपोजल्स आ गए, तो 20 प्रपोजल्स में से हम फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना, वो सब चीज। फिर हम उनको अपनी डिटेल देते हैं। तो यहां पर अब क्या, अब कहेगा लो भाई ये ले लो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द फाइनल लिस्ट अंडर सब रेगुलेशन 12 ऑफ रेगुलेशन 36A issue the information memorandum, evaluation matrix, and a request for resolution plans to every resolution applicant in the final list. ठीक है, RFR. Provided that where such documents are available, the same may also be provided to every prospective resolution applicant in the provisional list. वो कहता है कि पहले आपने प्रोविजनल लिस्ट बनाई थी ना, तो प्रोविजनल लिस्ट वाले को भी सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते अगर अवेलेबल है तो। द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स शैल डिटेल ईच, अब यहाँ पर पूरा डिटेल देगा RFRP में कि भाई किस तरह से आप इंटरेक्ट करोगे। अब मीटिंग्स होनी है ना, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के साथ, तो इट शैल डिटेल ईच स्टेप इन द प्रोसेस एंड द मैनर एंड पर्पस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द RP एंड द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अलॉन्ग विद कॉरेस्पॉन्डिंग टाइमलाइंस। अब आप ये देखिए कि ये जो टाइमलाइंस हैं ये हमारे यहाँ पर नहीं दे रखी है ना, क्योंकि ये डिपेंड करेंगे केस टू केस। द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स शैल अलाउ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मिनिमम ऑफ 30 days टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। कम से कम इसको 30 days देंगे टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा टाइमलाइन पर चलते हैं। तो टाइमलाइन में हमने कितना देखा था, 105 हो गया ना, तो रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आपका हो गया 30 days, तो T+135 हो गया। और सबमिशन ऑफ COC अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान आपको कब देना है भाई, 165th डे, तो 30 दिन इनके पास है। Yes sir. उसके बाद में 15 days फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है फॉर अप्रूवल, ये है। Sir, last one, sir.
हाँ, ये है ना। हाँ, तो विद इन 30 days ही हैज टू सबमिट, तो T + 135 हो गया। Yes, sir. Then submission of COC approved resolution plan to adjudicating authority. So 30 days COC will take, हाँ, है ना। तो T + 165 हाँ. then 15 days with the अच्छा, एडजुडिकेट को सिर्फ 15 days दिया. हाँ हाँ। प्री पैक में 30 days देता है। हाँ, हाँ. चल, ये हो ही गया हमारा, यहां तक हमने कर लिया। द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान शैल अलाउ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन मिनिमम ऑफ 30 days टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। चलिए आगे, द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान RFRP shall not require any नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो यहां पर भी कोई नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट आपको नहीं लेनी है, ठीक है। फॉर सबमिशन ऑफ और अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन प्लान, द RFRP shall require the resolution applicant in case its resolution plan is approved। भाई अब वो क्या कर रहा है, वो रेजोल्यूशन प्लान दे रहा है। अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए तो RFRP में कंडीशन लगा देंगे, भाई अगर आपका प्लान अप्रूव हो जाएगा तो आप एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे दोगे, ठीक है। दिस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज इन नेचर ऑफ ए बैंक गारंटी, ठीक है। So it may say that it shall stand forfeited if the resolution applicant of such plan after its approval by the adjudicating authority। मान लो प्लान अप्रूव हो जाए बाद में ना इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए क्या गारंटी, इसके लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले लेंगे इससे, ठीक है। वो कह देंगे भाई ये फॉरफिट हो जाएगी अगर आप इफ यू फेल टू इम्प्लीमेंट और कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये चेंज आया है ना। अगर कोई सीडी का कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो कमिटी में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अगर वो इन हाउस मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई एसोसिएशन बना रखी है या ग्रुप ऑफ अलॉटीज हैं, तो उन रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% और 100, तो उस केस में ये कंडीशन रिलैक्स कर सकते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में, ठीक है। Explanation 1. For the purpose of this sub-regulation, performance security shall mean security of such nature, value, duration, and source as may be specified in the request for resolution plans with the approval of the committee, having regard to the nature of the resolution plan and business. A performance security may be specified in absolute terms, such as guarantee from bank A, है ना, या फिर in relation to one or more variables, terms of resolution plan, amount payable, etc. अच्छा, any modification in the RFRP or evaluation matrix issued under sub-regulation 1 shall be deemed to be a fresh issue and shall be subject to timelines under sub-regulation 3, provided that such modification shall not be made more than once। तो RFRP में या evaluation matrix में भी आप चेंज कर सकते, ठीक है। एक बार से ज्यादा बार चेंज नहीं होंगे, और जितनी बार चेंज होगा तब से फ्रेश टाइमलाइंस होंगे। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में with the approval of the committee extend the timeline for submission of resolution plans, ठीक है। if they want to extend the timelines तो भी उस केस में approval of the committee लेना पड़ेगा, ठीक है। if the resolution professional does not receive a resolution plan in response to the request under this regulation, he may with the approval of the committee issue request for resolution plan for sale of one or more of assets of the corporate debtor। मान लीजिए पूरी कंपनी के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, तो COC के अप्रूवल के साथ में ही मे इश्यू रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान फॉर सेल ऑफ वन और मोर ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में with the approval of the committee reissue request for resolution plans if the resolution plans received in response to an earlier request are not satisfactory। भाई प्लान आए तो लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए, है ना, तो उस केस में क्या करेगा, रीइश्यू कर देगा RFRP, subject to the condition that the request is made to all prospective resolution applicants in the final list, provided that provisions of sub-regulation 3 shall not apply for submission of resolution plans under this sub-regulation। ये जो सब-रेगुलेशन 3 है, सब-रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, सब-रेगुलेशन 3 बोलता है कि कम से कम 30 डेज का टाइम आपको देना है ना। तो इस केस में 30 डेज वाला टाइम जरूरी नहीं है, मतलब ये, ठीक है। सर एक बार फिर से सर। हाँ देखिए ऐसा है,
सबसे पहली बात, जब आपने RFRP इवेल्यूशन मैट्रिक्स दे दिया, कम से कम आपको 30 डेज का पीरियड देना है फॉर सबमिशन Submission ऑफ of plan. रेजोल्यूशन प्लान। Hmm. ठीक है। आप क्या RFRP को मॉडिफाई कर सकते हो? द आंसर इज Yes, यस। yes. अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो 30 डेज का पीरियड तब से काउंट होगा मॉडिफिकेशन से। एक बार से ज्यादा आप मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, है ना? Okay. इतना तो हमने पढ़ लिया। अब वो ये कह रहा है, एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते ना सर? हाँ, अब ये कह रहा है कि प्लान्स तो आए आपके पास, RFRP आपने इशू किया, प्लान्स आए, बट प्लान सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना? तो वो ये कहता है कि भाई आप री इशू कर सकते हो RFRP। तो जब आप री इशू कर रहे अच्छा, हो तो उस टाइम पे फिर 30 डेज वाला टाइमलाइन मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये है। फिर उसमें कम भी हो सकती है टाइमलाइन, मतलब ये। ये फ्रेश टाइमलाइन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। बोलता है इट शैल नॉट अप्लाई। ये जो प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 3 है, सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है? सब रेगुलेशन 3 बोलता है कि आपको 30 डेज का टाइमलाइन देना है ना? सब रेगुलेशन 3 बोल रहा है RFRP शैल अलाउ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मिनिमम ऑफ 30 डेज। और 30 यहां days. पर 7 में क्या बोल रहा है? प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 3 शैल नॉट अप्लाई फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर दिस सब रेगुलेशन। ठीक है। हम्म। But sir, RFRP we can modify RFRP or evaluation matrix or IM we can modify. वंस, एक बार मॉडिफाई कर सकते। सर ये कहाँ पे, ये मैं एक्चुअली मिस कर गया। हाँ ये है ना, ये देखिए ना, सब रेगुलेशन 5, any modification in the RFRP or evaluation matrix shall be deemed to be a fresh issue and shall be subject to timelines under sub-regulation 3, Okay. provided that such modification shall not be made more than once। इसका मतलब कि आप RFRP evaluation matrix को मॉडिफाई कर सकते हो और वो फ्रेश इशू माना जाएगा। और जब फ्रेश इशू है तो वो कह रहा है कि आप इसको फिर टाइमलाइंस से देखो, जो सब रेगुलेशन 3 में दे रखे हैं। सब रेगुलेशन 3 में क्या दे रखे हैं? 30 डेज, है ना? 36C, 36C क्या बोलता है? स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोस्टल शैल प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा in consultation with the committee where the total assets as per the last available financial statements exceed 100 crore rupees and may prepare such strategy in other cases। भाई देखो, कई बार क्या होता है, कोई लैंड पार्सल है ना, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई दूसरे एसेट्स हैं, तो उसके लिए किसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी तो इन्वेस्टमेंट टीजर कुछ था पहले, कुछ वो हट गया है या अभी भी है सर वो? है। हाँ जी, क्या? एक इन्वेस्टमेंट टीजर करके कॉन्सेप्ट था कि बनाना पड़ता वही था। है, बस वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वही है, बेसिकली यही समझ लो आप, मार्केटिंग के लिए बना रहे हो। हाँ, वर्डिंग कुछ हो सकती है ऐसा, इसमें तो नहीं लिखा, IBC में कहीं नहीं लिखा कि इन्वेस्टमेंट टीजर। वो बना देते हैं वर्ड टर्मिनोलॉजी कुछ भी दे दो, बट इसी यही है। बट सर आई थिंक आया था इन्वेस्टमेंट टीजर, इफ यू कैन सर्च। नहीं 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 नहीं, IBC में कभी भी ऐसा वर्ड आया नहीं। ओके। भाई आपके पास पूरा बेयर कोड है, कंट्रोल F हाँ, करके देख लो। मैं देखता हूँ। Decision of implementing such a strategy along with its cost shall be subject to the approval of the committee। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट होगी और इसकी कॉस्ट ये कमिटी ही अप्रूव करेगी। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में ऑल्सो टेक मेजर्स फॉर मार्केटिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। क्या मतलब हो गया कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मतलब कमिटी के अलावा कमिटी के मेंबर्स, मान लो बैंकर है कोई, है ना, तो दे में ऑल्सो टेक मेजर्स। नाउ 37 बोलता है आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। बाकी मेंबर्स अगर रहे तो या नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग में वी कैन डिस्कस। हाँ, रेजोल्यूशन प्लान वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ हाँ, 37 38 सारे इंपॉर्टेंट है, 2 3 ही रेगुलेशन रह गए अब तो। हाँ राइट राइट। हाँ और ये बहुत बड़ा एक्चुअली आज। हाँ, ठीक है ठीक है, इसको नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, परसों करेंगे इसको। करेक्ट सर। ठीक है। तब तक अगर आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि वो ना आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, वो जो वोटिंग वाला था। हम्म। सर वोटिंग में मुझे यही समझ में आया कि अगर इन केस ऑफ दिस क्लास ऑफ एटर जो ये प्लॉट वाले हैं सारे, अगर हाँ 50% प्रेजेंट रहते हैं तो 50% में मोर देन 51% का वोटिंग इन फेवर होना चाहिए, राइट? 51 तो है नहीं, मोर देन 50% है। मोर देन 51।
मोर मोर देन देन 50? 50। ओके। भाई देखिए ऐसा है, हमारा प्रेजेंट पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। हम्म। सपोज देर आर 2000 होम बायर्स, हो सकता है उसमें से 1000 ही आए, हो सकता है 500 ही आए। हाँ हाँ। तो जितने आएंगे उसका मोर देन 50% देखना है हमारे को। ओके। जितने भी ओके आए सर, उसका ये मोर देन 50% देखना है। अगेंस्ट द स्पिरिट नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी जो मेजर मतलब 50% से भी कम आए हैं। नहीं, अब नहीं आए तो क्या कर सकते हो, वो तो आप होता ही ऐसे है, सारे तो नहीं आते ना। भाई उसको देखो ऐसा है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने उसको एजेंडा दिया है, उसको बताया है कि वोटिंग होनी है, वो तो अब उनके ऊपर है ना वोटिंग, वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। हम्म। ओके। ये है ना। भाई वो क्या करेगा, वो तो वोटिंग विंडो ही ओपन कर रख सकते हो ना आप, और उसके अलावा क्या कर सकते हो? और तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। राइट राइट। आपने वोटिंग विंडो भी रख ली, वोटिंग विंडो के बाद भी नहीं आ रहे तो आप क्या कर लोगे बताओ? जैसे इसमें सीओसी मीटिंग, नॉर्मल सीओसी मीटिंग में क्या होता है कि जैसे 100% वोटिंग शेयर में अगर 66% रहेगा तभी होगा, वैसे प्रेजेंट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, टोटल वोटिंग परसेंटेज हाँ के अगेंस्ट में होना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसा है, 66 नहीं होती तो वो वोट उसको ओपन कर देते हैं ना मीटिंग को। अभी हमने पढ़ा था ना, मैं एक बार दोबारा वो रेगुलेशन दिखा देता हूँ आपको। उसमें क्या कहता है, अब वो पहले तो कोई कैपिंग ही नहीं थी, अब उन्होंने कैपिंग लगा दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यू कैन कीप द वोटिंग विंडो ओपन फॉर 7 डेज, और 7 डेज के बाद में इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 डे, ये बोला। जैसे हम्म। देखिए सीओसी की मीटिंग हुई, मान लीजिए 100 करोड़ का डेट है, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन, मेजर डिसीजन लेना है, उसमें 66 करोड़ के जो क्रेडिटर है उनका उनका अप्रूवल चाहिए। favorable, मान लीजिए उतने लोग आए ही नहीं मीटिंग में, तो क्या करेंगे, वो उस वोटिंग विंडो को ओपन कर देते हैं मीटिंग के बाद भी। हाँ ये तो समझ गया, ये तो ठीक है। वो वोटिंग विंडो ओपन, पहले कोई कैपिंग ही नहीं थी, एक एक महीने वोटिंग विंडो ओपन रहती थी। बैंक हम्म। वाले कहते थे भाई हमें तो आरओ से अप्रूवल लेना है, हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना है। अब उन्होंने कह दिया मैक्सिमम 7 डेज तक ही रहेगी। 7 डेज के बाद में अगर आपको चाहिए तो आपको फिर 24 आवर्स, वन वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगी 24 आवर्स की, इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर्स। वो मैं रेगुलेशन भी आपको दिखा देता वो मैं पढ़ा हुआ है सर, आई नो। हूँ, पढ़ा हो ना? हाँ, अब नहीं ध्यान आ सर, गया ना? लास्ट बिफोर आई मीन सेशन में पढ़ा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए अच्छा डिस्कशन हो गया। और वो वाले क्वेश्चंस आपने देखे थे अजय जायसवाल जी, मैंने 15 क्वेश्चन डाले थे ग्रुप में। ये सर देखा था सर, आज मैंने वो वीडियो देखा दोबारा। हाँ। और जो डिसीजन मेकिंग जो आपका आरपी का है, इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी और कोई एम्प्लॉयज के कुछ कंडीशन होते हैं कि ये नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको डिस्कस करना होता है एम्प्लॉयज के साथ। हम्म। सो आई गोन थ्रू द अगेन वीडियो, तो हाँ मैंने जी, देखा दोबारा। हाँ, ठीक है।